Good morning, everybody. Welcome in my class again. Now today again we will start. Now today we will discuss about the new topic practical geometry of chapter number 14. The last chapter of the annual examination. Okay. तो सबसे पहले इसमें क्या है actually we have see the different shape around us in our daily life like the rectangle, square, circles, etc. We see the number of shape with which we are familiar, and now today we will discuss how we construct like a circle, line bisector, angle bisector, etc. तो इसमें क्या है, सबसे पहले उसमें हम वी हैव द डिफरेंट टूल्स लाइक द स्केल फॉर मेजरमेंट द लेंथ, divider for measuring the accuracy of the given length, compass for the construction या फिर drawing the figures for the like the angles, line bisector are used for the compass, and the set square and the set square protractor. These are the different use for which we use for the using the practical geometry. So today we will try to solve how to construct a given shape. सबसे पहले हम आते हैं सर्किल्स. What is a circle? A circle is a closed curve which are covered from a fixed point, and the distance between the fixed point to the surface are always fixed, and this fixed length is known as the radius, or the plural form of the radius is known as the radii. A closed curve है, suppose it is a closed curve. Circle is a closed curve which have a fixed point, right? Which is the fixed point. This point is known as the center, and the fixed length from center is known as the radius. We can draw infinite number or number of the radius in a circle. How many radius can have a circle? A circle have infinite number of the radius. Like this. This one is also radius. This one is also radius. This one is also radius, and this one is the also radius. फिर हो गया. If two radius which go through a straight two radius make an angle 180 degree at a center, then this radius is known as the diameter. Diameter, a line passing through the origin on the that passes through the origin and that touches the surface of the circle is known as the radius. Known as the diameter. The diameter is the longest chord. Chord we will discuss in नेक्स्ट लेक्चर. तो कॉर्ड में ये क्या है, जो आपका ए और बी है वो आपका डायमीटर होगा. ए बी इज द डायमीटर. डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन which is always passing through the center and which touches the surface of the circle, and that make an supplementary angle. It means 180 degree at the center. सेंटर पे जो उसका एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. इट मीन्स टू राइट एंगल होता है. तो टू राइट एंगल एंगल होता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं कैसे हम हाउ कैन वी ड्रॉ अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ द गिवन रेडियस. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1. एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. आपको रेडियस दिया है 3.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन गिवन ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल में 3.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंपास के हेल्प से हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं. ठीक, दिस वन. तो आप क्या है, अगर या तो एक तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, एंड सेकेंड मेथड व्हाट इज यू कैन मेजर डायरेक्टली ऑन
विद द हेल्प ऑफ द स्केल, आप स्केल से इसको 3.2 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। अब उस आर्क के हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या, हम इसके नीडल पोर्शन को फिक्स कर लेते हैं, किसी एक जगह फिक्स कर लेते हैं। और फिर फिक्स करने के बाद इसको कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट टर्न कराते हैं। तो टर्न करने पर जो फिगर आएगा आपका वो दैट वन इज अ सर्कल। तो ये आपका सर्किल का फिगर हो गया, जिसका सेंटर क्या है, O है, राइट, जिसका सेंटर क्या है, O है। और इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका रेडियस हो जाएगा A। तो इस सकते OA, ठीक है, रेडियस, इसकी लेंथ क्या है, 3.2 सेंटीमीटर। तो दिस वन इज द कंप्लीट सर्किल विद we draw with the help of रूलर है, कंपास। तो ये आपका सर्किल हो गया, इसका रेडियस क्या है, 3.2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, ड्रॉ अ डिफरेंट सर्किल विच हैव द सेम सेंटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है, ड्रॉ टू सर्किल विच हैव द डिफरेंट रेडियस। एक का बड़े वाले का कैपिटल आर मान लो, उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और जो स्मॉल आर है, छोटे वाले का है, उसका क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो we can say if a circle have different radii on the same circle, if a number of circle have same center and have different radii is known as concentric circle। तो concentric circle मतलब ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इसी सेंटर पे दूसरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब सर्किल, इसको बोलते हैं concentric circle। If a number of circle have same center and different radii is known as the concentric circle। तो आइए सबसे concentric circle हम ड्रॉ करते हैं। पहले वाले का रेडियस कितना क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करके हम 2.5 सेंटीमीटर एक आर्क लेते हैं। तो या फिर स्केल से मेजरमेंट कर लेते हैं 2.5 और इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज this one is my 2.5 radius। This one is the radius r। ये आपका रेडियस जो है, तो स्मॉल r है 2.5, जिसका रेडियस कितना है, 2.5, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये आपका O हो गया, O से A हो गया। अब आपका बोल रहा है एक 4 सेंटीमीटर का, अगेन हम स्केल से कंपास के जो लेंथ है मेजरमेंट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर का। अगेन वी ड्रॉ अ सर्किल विद हैव द सेम सेंटर, सेंटर 4 ही रहेगा। अब रेडियस आपका कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सेकंड सर्किल विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये आपका सेकंड हो गया विद, ये आपका इसको मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। OA क्या है, ये स्मॉल है, ये आपका जो है स्मॉल रेडियस है, इसका लेंथ क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या है, OB जो क्या है, कैपिटल R है, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर। O है द सेम सेंटर। और नंबर ऑफ द सर्किल which have same center is different radii known as the concentric circle। This one is the result of question number second। Now we will try to question number, now we will solve the next question। It is clear, okay। Now the next question number third is given। question number third is say draw a circle and two of its diameter। कह रहे हैं आपके पास कोई सर्किल ड्रॉ करना है, इसका 2 डायमीटर लेना है। इसमें 2 फिगर, आपको 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक में किया है। वी विल सॉल्व 1 बाय 1। इसमें वी हैव नॉट गिवन व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द आर्क ऑफ द रेडियस, सो वी टेक एनी आर्क, ओके। तो हम अपने मन से कोई सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस वन इज अ सर्किल। राइट,
दिस वन इज द सर्किल विच हैव सेम सेंटर, सेंटर इसका सॉरी ये आपका सेंटर हम को मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि ड्रॉ टू डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लें, सपोज दिस वन इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है आपका, हम मान लेते हैं ये डायमीटर हो गया, सी डी इज अदर डायमीटर। ओके, डायमीटर क्या, a straight line which is always passing through the center is known as the diameter which touches the surface of the circle। अब बोला है कि now join the end of the diameter, diameter के end point को join करते हैं, dot 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 से join करना this one and this one, this one and last this one। Now we have to join this shape, now this shape is यहाँ AB and CD, ठीक है, और डायमीटर, ये डायमीटर से हमने क्या डायमीटर्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो शेप है वो क्या होगा, ये जो फिगर बनेगा, देखिए जो भी फिगर को आप नेमिंग करते हैं उसको एक ऑर्डर में किया जाता है, चाहे आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाइए या फिर क्लॉकवाइज जाइए, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होकर जाइए या फिर राइट साइड में टर्न होकर जाएगा। तो जो सीक्वेंस होगा सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सीक्वेंस अगर आपका गलत हो गया तो आपका फिगर का जो इसमें फिगर का जो नेमिंग है वो गलत हुआ, समझिए आपका फिगर का नेमिंग आपका मिसमैच हो जाएगा। तो जो ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में आप उसको राइट करेंगे। जैसे हमने ए डी बी सी, या फिर आप इसमें सकते हैं ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो ये जो पॉलिटल है ए सी बी डी या फिर ए डी बी सी, आपको देखने में क्या लगता है, ये इज अ रेक्टेंगल। ये आपको जो फिगर होगा वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। सेकंड बोला है अगेन हम क्या करते हैं, अब दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं, हम इसी को ड्रॉ करते हैं। आप फिर से अब नेक्स्ट सर्किल ड्रॉ करिए और फिर से इसको ट्राई करते हैं। अब बोल रहा है कि ये तो आपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने ऐसा किया था। सेकंड बोल रहा है अगर डायमीटर आर द परपेंडिकुलर, इफ द डायमीटर आर द परपेंडिकुलर, इफ डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम पहले एक डायमीटर ड्रॉ करिए, दिस वन इज द ए बी, पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू सेंटर इसका यहाँ पी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टेक मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ। इसमें से पी क्यू का है या तो पी क्यू के इक्वल एक आर्क लेते हैं या फिर पी क्यू के हाफ से अधिक एक आर्क लेते हैं। तो सबसे पहले वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क, हाफ से आर्क। फर्स्ट वी मार्क एन अपर पोर्शन of this line and the lower portion of this line. Again don't change the arc of the given arc of the your compass. Again we cut this arc with the help of point Q using the same arc। अब point Q पे हमने इसको रख दिया, Q पे रखने के बाद इस लाइन को अपर पोर्शन और इस लाइन के लोअर पोर्शन हमने इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस लाइन के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को आपने इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे फिगर जो इंटरसेक्ट हुआ है ये लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है इस पॉइंट से हमेशा इस पॉइंट को हमेशा इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जो आपका है हम देखते हैं कि लाइन हमेशा सेंटर से पास हो जाएगा। अब ये जो लाइन आर्क होगा आपका ये परपेंडिकुलर होगा। If two line cross each other at a right angle, then these line are known as perpendicular line। अगर दो लाइन आपस में अगर 90 डिग्री पे कट करता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसका नेमिंग देते हैं पी क्यू, इसको हम आर मान लेते हैं और ये टी मान लेते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट इज पी क्यू एंड आर टी आर डायमीटर, राइट। अब इसके वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं, दिस वन
दिस वन, राइट। अभी देखते हैं कि ये राइट एंगल हो गया, मेजरमेंट करेंगे तो ये भी 90, ये भी, अगर हम इसको हम प्रोट्रैक्टर के हेल्प से अगर मेजरमेंट करें तो दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, दिस वन इज ये भी 90 और ये भी 90। तो सारा जब एंगल अगर राइट एंगल हो गया, अगर दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, दिस मींस दिस फिगर मतलब P R Q T, ये लिख लीजिए, या फिर नीचे से आप आना आ जाइए, P T Q R is a square, alright। This figure is the shape, this shape is the square shape, okay। तो आपने ये स्क्वायर का शेप हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is given, okay, it is clear, okay। now we will solve again next question। question number 4 is given, first we solve the question number 4। let us know कि how many circle divide a plane figure, a plane figure how एक प्लेन फिगर को सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सर्किल डिवाइड द प्लेन इनटू द 3 पार्ट। ये सर्किल है, सपोज दिस वन इज द सर्किल, इसके अंदर के पोर्शन बोलते हैं इंटीरियर पोर्शन, इसके बाहर का होगा एक्सटीरियर, और इसकी सरफेस जो जाएगी, सरफेस भी होगा ऑन दी सरफेस। इट इज क्लियर। A circle divide plane into the 3 part। First part is known as the interior portion, second part is known as the exterior portion, and third portion is on the surface of the circle। सर्किल के अंदर में जो भी होगा उसका इंटीरियर पार्ट होगा, और सर्किल के बाहर का जो होगा वो उसके एक्सटीरियर पार्ट होगा, और एक बार हम सर्किल के राउंड पे जो करेंगे वो उसका ऑन द सरफेस ऑफ द सर्किल होगा। तो क्वेश्चन में थर्ड, ड्रॉ अ सर्किल एंड मार्क ए एंड बी। इसमें ये बोला है कि सर्किल का रेडियस कितना होना चाहिए। द रेडियस ऑफ सर्किल इज नॉट गिवन, ओनली सी ड्रॉ अ सर्किल। इट मींस we can draw a circle with the help of any arc। suppose this one is the circle, okay। so it means this one is the circle, राइट। ये आपका सर्किल हो गया, जिसका सेंटर आपका क्या है, अंदर का है। अब आपसे बोला है क्वेश्चन फर्स्ट में ए बोला है कि ए लाई ऑन द सर्किल। हम कहीं भी ले लेते हैं ऑन द सर्किल, मतलब यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट ए है। बी क्या है, बी इज द इंटीरियर, इस सर्किल के अंदर आपको एक बी पॉइंट ड्रॉ करना है। बी कहीं भी ले सकते हैं, हम कह रहे हैं बी यहाँ पे, बी यहाँ सकता है, यहाँ सकता है, कहीं भी होगा, लेकिन इस विदिन अ क्लोज फिगर सर्किल के अंदर होना चाहिए। सी बोला है कि जो कैपिटल सी है, तो सी है इस सर्किल का एक्सटीरियर पोर्शन होगा। एक्सटीरियर मतलब इस सर्किल के बाहर होगा, दिस वन इज द एक्सटीरियर पोर्शन। तो बस आपको ये सर्किल ड्रॉ करके इसकी तीनों पार्ट को बताना था कि इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्फेस ऑफ पोर्शन कौन कौन सा होगा, वी हैव टू मेंशन हियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 5। Question 5 is given, question C, draw a circle, draw A and B are the center of the two circle of equal length। A और B दो सर्किल का सेंटर है, अब दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। बोल रहे हैं कि फर्स्ट सर्किल, इफ यू ड्रॉ अ फर्स्ट सर्किल देन इट पासिंग थ्रू द सेकंड सेंटर, व्हेन वी ड्रॉ अ सेकंड सर्किल देन इट पासिंग थ्रू द फर्स्ट सेंटर। तो आपको इसमें सर्किल का रेडियस नहीं दिया है, तो वी कैन टेक एनी आर्क ऑफ द लेंथ फॉर ड्राइंग अ सर्किल। तो हम अपने से मेजरमेंट कर लेते हैं। सपोज दिस वन इज द ए, हमने क्या किया, ए ले लिया, ए से सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लिया,
दिस वन ए। आर पूरा बड़ा हो गया, आर छोटा कर लीजिएगा। ये आपका पॉइंट, ये जो आपका सर्किल जा रहा है ये पॉइंट ए से है। अब दूसरा पॉइंट जो है इसके सरफेस पे है, ये बी है, ठीक है। अब जो दूसरा जो पॉइंट है जो हमने ए बी काट लिया, सेम मार्क को आप करना है, अब बी से इसको टच करते हैं। बी से एक सर्किल ड्रॉ, पॉइंट बी पे रख करके दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे जो ए से पास हो जाएगा। दिस वन इज द सेकंड सर्किल which is passing through the first circle, right? तो आपका देखिए we have to draw a two circle with same center A and B। ये पोर्शन इस सर्किल का सेंटर है और ये इस सर्किल का सेंटर है, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं C and D पर, right? ये these circle intersect at a two different point and these point is known as C and D। Last one is called AB and CD are the right angle। AB हो गया और CD ज्वाइन करते हैं, right? AB and CD suppose ये intersect करें O पर, if we measurement the angle of this one, तो देखते हैं ये this one is, ये आपका कहाँ पे आ रहा है, this one is the right angle। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या ये राइट एंगल पे है, लिख सकते हैं जो एंगल है एंगल बी ओ सी इक्वल है ए ओ सी, ये दोनों एंगल कितने का है, राइट एंगल का। तो लिखेंगे क्या है, यस यस। पूछा है कि दिस एग्जामिन वेदर दे आप वेदर ए बी एंड सी डी आर द राइट एंगल, क्या ये ए बी और सी डी आपका राइट एंगल पे, वी कैन से यस this line and these centers and chord intersect each other at point O and these and they make angle right angle, okay। The next topic is the line segment, okay। line segment क्या है, exercise 14.2 के लिए line segment। तो line segment लाइन सेगमेंट क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, सपोज दिस वन इज द ए एंड दिस वन इज द बी, दिस वन इज द लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हमेशा ए बी ऐसे लिखते हैं, उसके पावर ये स्ट्रेट लाइन आते हैं, इसका मतलब ये सिंबल होता है लाइन सेगमेंट का। सिंपली वी यूज अ रूलर in easy way, this is the for drawing a line we use a line segment and this is the symbol for the line segment। इसी तरह एक्सरसाइज 14.2 में आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 यूजिंग अ रूलर एंड सिंपली एक्सरसाइज 14.2, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या, सिंपली ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इतना यूजिंग अ, आप क्या कंपास लीजिएगा और ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसका लेंथ क्या होगा 7.2 सेंटीमीटर, बस 7.3 सेंटीमीटर। दिस इज सो इजी क्वेश्चन, बस आप लिख सकते हैं ए बी आपने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका लेंथ क्या होगा 7.3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर एंड कंपास। आपसे बोला रूलर एंड कंपास की हेल्प से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस सेकंड क्वेश्चन वी सपोज वी ड्रॉ अ लाइन ए बी, राइट। नाउ द क्वेश्चन से कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, सपोज वी use a compass and we should measure a length of 5.6 as given question, as by the given question। हम क्या करते हैं 5.6 का एक आर्क लेते हैं और 5.6 का आर्क लेकर के पॉइंट ए से रखते हैं और इस लाइन को कट करते हैं, चाहे जहां भी कट करते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ए सी होगा वही आपका 5.6 सेंटीमीटर का लाइन है, ओके। तो
इसी तरह से 5.6 सेंटीमीटर का बस क्या कंपास यूज करना था। तो आपको लाइन अपने मन से जितना भी लेंथ ड्रॉ करना है, यू शुड ट्राई, यू शुड ड्रॉ इट। और जितना भी कंपास में बोला है उतना लेंथ आप कंपास मेजरमेंट करके इस पॉइंट को एक कॉर्नर से किसी एक कॉर्नर पे करके उसको कट कर देंगे। और जो पॉइंट कट होता है जिस पॉइंट को, उसको कुछ भी आप एक वेरिएबल या फिर सी डी ई जो भी अपना यू कैन सेलेक्ट एनी अल्फाबेट एंड measurement AC is equal to 5.6. This is the symbol of line segment. Okay. Now you should try it, and that's the first step. Thanks to all of you.